forest just not comprises of the trees, it also comprises of different vegetation that we have, right? Okay, ma'am, forest is natural and tree cover is man-made. You can say that the tree cover is man-made, but forest can also be man-made. And we have the example of China. China में सबसे highest area is under the man-made forest. ठीक है? So forests are also man-made. Tree cover you can say it is man-made. मतलब most of it is man-made. However, naturally भी trees grow कर सकती हैं. Lots of diversity is there. Natural growing vegetation is there. With जो ground होता है that is also covered with the vegetation. There are lots of biodiversity, different kinds of animals and the plants living together, maintaining the ecosystem. And with that news that I had read recently is about Brazil. Brazil की news पढ़ी है आप लोगों ने? Brazil में we have Amazon forest, we have rivers there, but still it is going through something. What is that? If you read the newspaper, you must be knowing. Forest fire. Yes, forest fire चल रही है, वहाँ burning चल रही है, and it is seeing the drought, a very severe drought. इतना severe मतलब last 70 years में इतना severe drought वहाँ कभी नहीं आया जितना अभी आ रहा है, and that too due to climate change. And you cannot even imagine मतलब Amazon forest, that is the largest forest on the whole of the earth. It is said to be the lungs of the earth, and still that place is facing the drought conditions. ठीक है, तो वो थी related to climate change and forest से related ये news एक जो अभी news में मैंने recently पढ़ी है, तो फिर that was it. But coming back to your forest thing, okay, so forestry क्या है? It is basically the study of the forest, or you can say kind of maintaining the forest. Now how do you define forest? It's a plant community predominantly of the trees. ठीक है, so predominantly जो vegetation वहाँ पर आप बोल सकते हो dominate करती है, that is the trees. And other woody vegetation can also be there. ठीक है, woody vegetation में आपका shrubs आते हैं. Herbs तो क्या होते हैं? Herbaceous हो गया. Shrubs majorly are there. Usually with a closed canopy. That means canopy. The upper canopy is quite closed. ठीक है, तो light generally यहाँ पर बहुत कम पेनिट्रेट करती है, तो पेनिट्रेट करती भी है तो फिर कुछ जगह पर क्या होगा, बिल्कुल आपको ऐसा बंद दिखेगा ऊपर से कैनोपी. ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड और टर्म होता है, दैट इज द स्टैंड. व्हाट इज द स्टैंड? सी, एक फॉरेस्ट में ही सपोज वी हैव दिस फॉरेस्ट इन विच डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर ग्रोइंग आउट देयर. ठीक है, नाउ वी हैव सपोज पूरा एक फॉरेस्ट है जहाँ पर आपके अलग अलग स्पीशीज की ट्रीज आर ग्रोइंग, लेकिन वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया, वन पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज देयर जिसमें एक ही टाइप की ट्रीज है. ठीक है, तो सपोज यहाँ पर सारी साल की ट्रीज हैं, या फिर यहाँ पर सारी टीक की ट्रीज हैं. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रुप होगा अलग से एक एरिया जो कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का है, मींस यूनिफॉर्म स्पीशीज से ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज है, सेम एज का है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टैंड कहते हैं. ठीक है, एंड स्पेशली इट इज इम्पोर्टेंट, स्टैंड कहाँ पर हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट होता है? व्हेन वी गो फॉर कमर्शियलाइजेशन. ठीक है, तो ट्रीज जो है उनको कट डाउन करके दे आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पस. सो देयर वी गो फॉर using this term of stand. Okay, वो एक प्लेस है जहाँ पर you'll get the teak का stand, और वो एक प्लेस है जहाँ पर साल का stand. So all those trees can be felled down at one time in order to go for firewood के लिए या फिर furniture के लिए this can be used. ठीक है, okay, shrubs not woody. Shrubs generally semi woody and tree are woody. हाँ, you can say that. मतलब shrubs are not saying कि fully woody होता है. Shrubs में wood you can obtain, थोड़ा बहुत woody वो होती है. So those are also like a part of forest it is. ठीक है. So coming to your forest classification, और यहाँ से भी questions आते हैं examination में. तो forest classification we have a basis of different parameters we have. So first is a forest classification based on the age. Age के basis पे कैसे हम define करते हैं? Either it is even age forest or uneven age forest. Even age forest means when we have, suppose this is our forest area where we have different trees outgrowing there. ठीक है, अब हम यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं किसी एक ट्री को, से द ओल्डेस्ट वन. सो ओल्डेस्ट ट्री वी हैव ऑफ 100 years एज. ठीक है, दिस इज सपोजली, मतलब हम ऐसा नहीं कि एक ही ट्री को कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर सेवरल ट्रीज. ठीक है, सो यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू देयर इज दिस फॉरेस्ट जहाँ पर एक ट्री है जो 100 years की. ठीक है, उसी के बगल में एक ट्री है विच इज ऑफ 98 years. उसी के बगल में एक और ट्री है विच इज ऑफ 95 years, या फिर यहाँ पर एक ट्री है विच इज ऑफ 80 years. तो हम यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस है इन देयर एजेस दैट इज नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, सो 25% से कम है इनमें एज का डिफरेंस. सो जब 25% से कम होता है एज डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड एज इवन एज फॉरेस्ट. ठीक है, सो ऑलमोस्ट जो ट्रीज है वो ऑलमोस्ट सेम एज, राइट. एंड द अदर वन वी हैव द अनइवन एज फॉरेस्ट. अनइवन एज फॉरेस्ट में क्या होता है? दोज आर कॉल्ड एज योर इरेगुलर फॉरेस्ट. यहाँ पर जो ट्रीज की एज का डिफरेंस है दैट विल बी मोर देन 25 years. मतलब कि एक ट्री हमारी 100 years की है तो दूसरी ट्री हमारी जैसे 50 years की होगी सपोज. ठीक है, या फिर एक और ट्री है जो कि 60 years की है. सो देन वी विल कॉल इट एज अनइवन एज फॉरेस्ट. ठीक है, इवन एज ट्रीज आर मैन मेड, या इट कैन बी मैन मेड. जनरली मैन मेड हमको इसीलिए भी चाहिए होती जब कमर्शियलाइजेशन करना होता है ना किसी जगह का, अगर हमें ट्रीज बाद में ये चाहिए फॉर कमर्शियल पर्पस, देन दिस कैन बी डन. कि
एक जगह प्लांटेशन लगा दो ट्रीज का, राइट। तो जनरली हाँ दे कैन बी मैन मेड। और अनइवन एज फॉरेस्ट कौन सी होगी, जो नेचुरली जहाँ पर एक ट्री फेल हो रही है, दूसरी ट्री अपने आप से ग्रो हो रही है, फिर तीसरी उसी के बगल में क्या है एक ट्री है, उसके जो सीड्स है वो नीचे गिर गए, फिर वहाँ से नया ट्री बन रहा है, तो देयर विल हैव व्हाट अनइवन एज, ठीक है। Then we have on the basis of your growing stock. Growing stock क्या हुआ, मतलब the trees that are growing there, ठीक है, उसको हम अगर stock की तरह consider करें, so we have the normal forest and we have the abnormal forest. Normal forest क्या हो गया, normal forest हो गया जहाँ पर कि normal age gradation, that means जो एज का डिफरेंस है दैट इज नॉट टू मच, 25% से ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, एज ग्रेडेशन इज एक ऑलमोस्ट सेम एज की, जहाँ पर ग्रोइंग स्टॉक क्या है वो ऑलमोस्ट सेम है, दैट मीन्स द स्पीशीज दैट आर ग्रोइंग देयर दे आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब अगर 100 ट्रीज हैं तो उसमें से 80 ट्रीज क्या है सेम स्पीशीज की, ठीक है। देन विल कॉल इट एज द सिमिलर और यूनिफॉर्म ग्रोइंग स्टॉक। एंड द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन्स द बायोमास इंक्रीज, ठीक है। सो पर ईयर जो बायोमास इंक्रीज है दैट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल दी ट्रीज, ऐसे नहीं होगा कि एक ट्री का जो है 10% उसमें ग्रोथ हो रही है एंड दूसरी ट्री में देयर इज ओनली 1% ग्रोथ, 1% इंक्रीज इन बायोमास, या फिर एक ट्री है जिसमें 50% ग्रोथ हो रही है, दूसरे में कहीं 5% नहीं हो रही, तो दैट वुड बी कमिंग अंडर एबनॉर्मल फॉरेस्ट, ठीक है। सो नॉर्मल फॉरेस्ट कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पर एज ग्रेडेशन इज यूनिफॉर्म, ग्रोइंग स्टॉक इज यूनिफॉर्म एंड द इंक्रीज इन बायोमास इज सेम फॉर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सो उसको हम नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे, और इन तीनों में से कुछ भी अगर मैच कर रहा है so it will be considered under abnormal forest, ठीक है। Then we have on the basis of regeneration. Now this question is also asked and this question was there in NABARD में पूछा गया था एक बार, ठीक है, और हाँ even IBPS में पूछा गया था। So on the basis of regeneration which kind of forest we have, एक होते हैं आपके हाई फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं कपाइस फॉरेस्ट, ठीक है। कपाइस फॉरेस्ट को हम लो फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आपके हाई हो गए तो फिर लो भी होना चाहिए ना ऑपोजिट में, तो कपाइस फॉरेस्ट को लो फॉरेस्ट भी कहते हैं। हाई फॉरेस्ट क्या होगा, जहाँ पर मोस्टली जो ट्रीज है वो सीड से रीजनरेट है, यानी कि जो हमारे नए सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं, द न्यू प्लांटलेट्स दैट आर ग्रोइंग दोस आर ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। एंड द अदर वन वी हैव द कपाइस फॉरेस्ट। कपाइस फॉरेस्ट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ लैंड एरिया वेयर वी हैव ग्रोन ट्रीज, मैन मेड ट्रीज फॉर एग्जांपल। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैड टू ऑब्टेन सम ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो हमने क्या कर दिया, उन ट्रीज को कट कर दिया, हार्वेस्टिंग कर दी। नाउ हाउ हार्वेस्टिंग इज डन, वन तो हार्वेस्टिंग इज डन कि हम डायरेक्टली नीचे से ही उसे कट कर दें, ठीक है। एंड दूसरी हार्वेस्टिंग होती है कि हम उसको यहाँ से कट ना करके बल्कि थोड़ा ऊपर से, थोड़ा हम स्टम्प जो है दैट वुड बी लेफ्ट, ठीक है। सो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विल गो फॉर लाइक कटिंग ऑफ द ट्री। व्हेन दिस इज डन, सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, यहाँ पर से जो ये पोर्शन हमने कट कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन तो कट कर दिया, यहाँ पर जो स्टम्प बचा हुआ है फ्रॉम दैट स्टम्प न्यू स्प्राउट्स विल बी ग्रोइंग, ठीक है। सो न्यू प्लांट्स विल बी ग्रोइंग फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर कपाइस, मतलब कपाइस फॉरेस्ट में से कहते हैं, लो फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दैट वुड बी कॉल्ड एज पोलार्डिंग इफ लीविंग द स्टम्प। सी नाउ देयर इज one is called your copaicing, the other one is called your polarding. There is a difference between the two. What is the difference? There is difference in the height, जितना हम वो स्टम्प या नीचे का पोर्शन छोटा, ठीक है। इफ इट इज लाइक कम है, इतना जो हमारा ग्राउंड लेवल से अगर कम हाइट में भी है, we are don't remember the exact height what it was. In polarding में we have longer length as compared to your कपाइस, ठीक है। सो कपाइस में कम होती है हाइट, मतलब स्टम्प जो छोड़ रहे हैं उसकी हाइट कम होगी, पोलार्डिंग में द हाइट वुड बी मोर, ठीक है। एंड व्हाई इज इट डन, व्हाई डू वी गो फॉर पोलार्डिंग rather than कपाइसिंग, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज वन थिंग वाज इंक्लूडेड इन दिस कि जब ये छोड़ा जाता है, जैसे स्टम्प इज लेफ्ट आउट, सो अगर इसकी हाइट कम है, सो देयर आर मेनी नो एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ मस्ट हैव सीन फॉरेस्ट में जो क्या करती है, ग्रेजिंग करती है। सो ड्यू टू ग्रेजिंग दे ईट अप दिस पोर्शन, तो नए जो भी स्प्राउट्स निकल रहे हैं दोस आर ईटन अप। सो इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम दीस ग्रेजिंग एनिमल्स, पोलार्डिंग इज डन। तो वो क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर से जो भी नया स्प्राउट्स निकल होगा दोस वुड बी आउट ऑफ रीच ऑफ दीस एनिमल्स। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पोलार्डिंग इज डन इज दिस। And other reasons can also be that in some species copaicing is more suitable, in other species polarding is more suitable, ठीक है। Then moving on the basis of your species composition. Species composition में we have two types, one is a pure forest and the other one is a mixed forest. If we say कि certain place पे there is a forest of देवदार, ठीक है। If I say कि वहाँ पर देवदार का forest, if I am saying कि देवदार का forest है, that means most of your plant species should be of देवदार, तो मतलब कितना होना चाहिए प्योर फॉरेस्ट बोलने के लिए, 80%। आउट ऑफ 100 ट्रीज इफ आई एम कंसीडरिंग, आउट ऑफ दोस 80 ट्रीज शुड बी ऑफ देवदार, देन आई कैन कॉल इट एज देवदार का फॉरेस्ट, ठीक है।
Yeah, Citrus deodara is the scientific name. Good. And mixed forest when it would be like less than 80%. Right? Then we have on the basis of legal legislation. Now legal legislation, this was defined in the forest policies. Okay, so we have the different forest policies that are defining कि क्या forest में करना चाहिए, किसको rights मिलने चाहिए, किसको rights नहीं मिलने चाहिए, what kind of activities are allowed in the forest. So on that basis we have the three types. Okay. First is your reserved forest. Reserved forest क्या होते हैं? The rights to all activities like hunting, grazing, सारे banned है unless and until the permission is granted for a particular reason. Now which kind of reason it can be? It can be like there is a man-eater tiger, suppose there is. ठीक है? So उस case में एक hunter को बुलाया जाएगा and then he would be like given the permission कि आप इसको hunt करके मारो. ठीक है? So those are the conditions in your reserved forest. That means no activities are allowed. No one is allowed to do anything. वहाँ से आप अपने एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते फॉर ग्रेजिंग. यू कैन नॉट हैव द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. यू कैन नॉट गो आउट देयर फॉर हैविंग हनी. अगर आपको दिख भी रहा होगा तो भी यू कैन नॉट हैव इट फ्रॉम देयर. ठीक है? आप फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट्स नहीं ले सकते हो. सो किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं. यहाँ पर किसी की हुई भी एक्टिविटी को परमिशन नहीं दिया जाता है अनटिल अनलेस योर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपको परमिशन. ठीक. सेकंड इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट्स टू एक्टिविटीज आर गिवन टू सम कम्युनिटीज. Now some communities, कौन सी communities? Suppose there are tribes that are living in a protected forest. ठीक है? Now उन tribes का क्या? उनकी तो livelihood ही वहाँ से चलती है ना? So वहाँ पर you cannot उन पे आप laws नहीं enforce कर सकते हो. So उस केस में क्या है? Those communities are given these rights कि you live in those forests and then whatever things you need from the forest you can take. You can have the forest resources. For example, we have many communities. One is your सेंटिनलीज कम्युनिटी था, आई गेस वो कुछ साल पहले आपका न्यूज़ में आया था. दोज वर लिविंग इन योर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार में रहते हैं आपके सेंटिनलीज दीज कम्युनिटीज देयर एंड दे डू नॉट अलाउ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट. अंडमान एंड निकोबार में है ना? या अंडमान एंड निकोबार में है दीज कम्युनिटीज, दीज ट्राइब्स एंड देयर आर मेनी अदर फॉरेस्ट एज वेल जहाँ पर ऐसी ट्राइब्स प्रेजेंट हैं. सो वो ट्राइब्स क्या करती है? ना तो आउटसाइड वर्ल्ड के किसी से बात करते हैं, ना दे अलाउ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड टू कम. ठीक है? सो इन दैट केस दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स. ठीक है? या बीबीटीजी ग्रुप्स दोज आर कॉल्ड एज. एंड ये अभी आपका इन द रीसेंट यूनियन बजट आल्सो ये एक स्कीम आई है ना रिलेटेड टू दीज बीबीटीजी. आई कांट रिकॉल इट एग्जैक्टली. देयर इज दिस एंड नो नाबार्ड में भी क्वेश्चन आ रखा था आपका बेस्ड ऑन बीबीटीजी. Janman, Janman is the scheme for that. Yes. Okay, so then coming back to your now village forest. तो third आपका क्या है? village forest. जहाँ पर कि village, suppose there is a forest area and उसी के पास कोई एक village area है, तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके forest protection के laws नहीं included होते हैं. What is that is these villages that are living nearby, they are allowed to have the forest produce. They can go to the forest, they can collect अपने जो livestock है उनके लिए grazing के लिए घास वहाँ से ले आ सकते हैं. Then you can also have the different forest के produce honey collection कर सकते हैं. medicinal plants they can be like collecting from there. So villages को दिया जाता है कि आप यहाँ जो भी आपको forest produce देना है वो आप ले सकते हैं. At the same time you also have these this responsibility of protecting the forest. ठीक है? village forest और communal forest और ये community forest. कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है. हाँ, कम्युनिटी फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट कैन सी ऑलमोस्ट सेम बिकॉज वहाँ पर भी कम्युनिटी जो रह रही है नियर बाय द फॉरेस्ट एरिया, दोज आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? एंड वहाँ पर और ज़्यादा मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट में इट इज़ लाइक कि उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. वहाँ पर आपके स्पेशल जो आप बोल सकते हैं ग्रुप्स बनते हैं. ग्रुप्स में दे चूज अ लीडर, देन दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आप ये चीज़ वहाँ पर से देखोगे, ये चीज़ वहाँ पर इलेक्शन नॉट इलेक्शन बट या यू कैन से दे आर काइंड ऑफ चूजन, द लीडर्स आर चूजन फॉर डिफरेंट टास्क्स. ये सब कम्युनिटी फॉरेस्ट. Village forestry, you can say kind of community forestry it is. ठीक है? Then we come to social forest. Now social forestry क्या हो गया? Would you understand by this term? Forestry we have studied. Forest की study करना, उसको conserve करना, उसको manage करना is the forest. Now what is social forestry? When the society comes into the picture. Society क्या है? Society are the people. And people are involved in nurturing the forest, in growing of the forest. Forest area हम expand अगर करें, ठीक है? नए मतलब if we go for plantation of new areas with the forest बना रहे हैं, कोई ऐसा area which has not been like इससे पहले वहाँ पर कोई फॉरेस्ट एरिया था नहीं, इट हैड बीन बैरिंग लैंड एरिया. वहाँ पर जाकर के इफ यू गो फॉर प्लांटिंग न्यू क्रॉप्स या फिर जो ऑलरेडी हमारे पास फॉरेस्ट है उनको भी अगर हम मैनेज करें, सो दैट मीन्स पीपल आर इन्वॉल्व इन दी फॉरेस्ट्री वर्क्स. ठीक है? सो दैट वुड बी कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट. ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. वो अब डेमोक्रेसी हो गया ना,
फॉरेस्ट्री में जब डेमोक्रेसी मिक्स कर देंगे, मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ. यस. अच्छा, इसी से मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू योर फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया शुड बी कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट. कितना लैंड एरिया? 1/3 होना चाहिए. यस, दैट इज योर 1/3 या फिर 33%. ठीक है, 33% होना चाहिए. अच्छा, हिली एरियाज में कितना होना चाहिए, प्लेन एरियाज में कितना होना चाहिए? हाउ मच इज रिकमेंडेड फॉर योर हिली एरियाज एंड हाउ मच इज रिकमेंडेड फॉर योर प्लेन एरियाज? हिली एरियाज, यू अंडरस्टैंडिंग, योर स्टेट्स लाइक वी हैव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, these all are considered under the hilly states. So hilly 60%. Okay, 50-20. अच्छा, any more guesses? 60-30. Okay. Pritish Raj, Nihal ने तो बता दिया. Rekha is not ready to even guess. What about others? No guesses. 65 for you. Same here. 60-30. Okay. हमें एक आदत बन जाती है, इससे क्वेश्चन भी कभी-कभी गलत हो जाते हैं. तो guess नहीं करना, skip कर देंगे क्वेश्चन. हाँ, ये भी है. एग्जामिनेशन में फिर और ज़्यादा मन करता है ना, एक और guess मार देते हैं, एक और करते हैं. Okay, yeah. So it is 66% in case of your hilly areas. Okay, hilly areas में 66% एरिया होना चाहिए under forest, and in case of your plain areas it will be 33%. ठीक है. And if I talk about currently इंडिया में कितना % of land area is under forest? अच्छा, फॉरेस्ट अलग है, फॉरेस्ट कवर इज अलग है, ट्री कवर इज अलग है. राइट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट फॉरेस्ट कवर. मैं स्ट्रिक्टली आस्क अबाउट फॉरेस्ट कवर, वो कितना? यस, इट इज अराउंड योर 21.9% अराउंड. ठीक है, टोटल इफ वी सी इट इज 24.6%. ठीक है, बाकी माइनस करोगे तो यू विल गेट द ट्री कवर. ठीक है. ओके, सो social forestry is the management and the development of forest with afforestation of barren lands to achieve the environmental benefit and rural development. ठीक है, so किसी भी एरिया में एक go for managing of the forest, development of the forest with afforestation. So there are two terms. We have afforestation and reforestation. What is the difference between afforestation and reforestation? Snehal is asking for repeat. See, 21.9% approximately it is the tree area that we have, sorry, forest area that we have, and the total 24.6% is just the total. That is the forest area plus the tree cover. Okay. Plantation of forest by artificially. What is that? Cutting down a forest to cutting down the deforestation. I'm asking about the reforestation. Reforestation. हेलो मैम. आज वो एरिया होगा जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट है, वो किसी रीजन को कट कर दिया गया, फिर वहाँ पे प्लांटेशन फिर से कर दिया गया, वो रिफॉरेस्टेशन है. Yes. न्यू लैंड पे प्लांट को करा है, ट्री को करा है. तो क्या होता है? एफॉरेस्टेशन होता है हमारा. Where earlier no vegetation was there and now we are going for planting new trees. So that is the afforestation. ठीक है. And reforestation क्या होता है? Reforestation is the planting of trees in an area that was previously there were plants, or previously there was forest, and due to any natural calamity it can be कि वहाँ पर फ्लड आया जिसकी वजह से सारा सॉइल इरोजन हो गया, ट्रीज सारी हट गई, या फिर वोल्केनो इरप्शन हो गया, किसी भी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया गायब हो गया. तो नाउ अगेन वी आर गोइंग फॉर वहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लांटिंग कर रहे हैं, ट्रीज की प्लांटेशन कर रहे हैं. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द रिफॉरेस्टेशन. ठीक है. Okay, so this term, the social forestry term, this was coined first time by National Commission on Agriculture. ठीक है, 1976 में this term was coined. Alright, now social forestry में ही हमारे पास we have different types. What are the different types? We have the rural forestry, जिसमें हमारे further आता है community forestry, agroforestry, and then we have the urban forestry and the farm forestry. ठीक है. First talking about your rural forestry के अंदर जो we have community forest. So community forestry is what? When a certain community कट कर दिया गया, फिर वहाँ पे प्लांटेशन फिर से कर दिया गया, वो रिफॉरेस्टेशन है. कट कर दिया गया, फिर वहाँ पे ट्री को करा है. we are going to. Forestation is attitude the eruption of the trees. The social forest जिसमें हमारे further आते हैं community forestry, agroforestry, and then we have the urban forestry and the farm forest. ठीक है. First talking about your rural forestry के अंदर जो we have community forest. So community forestry is what? When a certain community is given the rights. So community forestry क्या है? When the communities have the right to manage the forest resources which they are dependent on with a view of improving their living conditions. It means they are living, nearby this forest area. और साथ ही क्या कर रहे हैं? अपने जो लिवलीहुड का सामान है वो भी फॉरेस्ट एरिया से ले रहे हैं. तो तब इनको क्या दे देते हैं? इनको राइट्स दे देते हैं कि आप ले लो यहाँ से whatever you need. At the same time also manage these forests.
So that is called as your community forestry. ठीक. Then we have the agroforestry. Agroforestry क्या है? Okay. एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रोफॉरेस्ट्री इज द यस एग्रीकल्चर के साथ साथ जब हम फॉरेस्ट्री वाला काम कर रहे हैं, ठीक है. सो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वी आर ग्रोइंग, एट द सेम टाइम वी आर आल्सो ग्रोइंग द ट्रीज अलॉन्ग विद दैट, ठीक है. सो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? इट्स अ लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग द ट्रीज कंबाइंड विद द क्रॉप्स. मतलब बीच में हमने क्रॉप्स लगाई हैं, एट द सेम टाइम साइड में वी आर गोइंग फॉर द ट्रीज भी. और ये भी क्या है, आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है. सो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री: agri-silviculture, silvopastoral culture, and the agro-silvopasture. Agri-silviculture, simply agricultural crops with the silviculture. That means the forest trees are also there. Okay, so trees are grown along with the crops. Then we have silvopastoral. Silvo means the trees we are growing. Pastoral means pasture land. That means the animals that we have, उनके grazing के लिए pasture land भी we have. Okay. Third is agro-silvopastoral. That means agricultural crops we have, the trees we have and the pasture land. That means तीनों को हम मेंटेन करें, ठीक है. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बीच में आ गए, साइड पे ट्रीज भी है, और देन ऑन इन रोटेशन आल्सो वी कैन डू कि एक टाइम पे आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कर रहे हो, दूसरे टाइम पे आप यहाँ पर ग्रासेस ग्रो कर रहे हो विच आर यूज्ड फॉर द पास्चर लैंड एरिया, या फिर एट द सेम टाइम यू कैन बाइफरकेट द लैंड एरिया आल्सो. एक जगह पर यू आर ग्रोइंग द एग्रीकल्चर क्रॉप्स और दूसरे एरिया में आपके ऐसे ग्रेजिंग करने के लिए, वहाँ पर मतलब ग्रेज करने के लिए लाइफ स्टॉक के लिए वहाँ पर ग्रासेस ग्रो, ठीक है. अच्छा, ड्यू टू सम रीजन ना आई विल हैव टू लीव द क्लास राइट नाउ एंड वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस. जो हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री तक हो गया है, इसके आगे वाला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी, वी आर गोइंग टू हैव द क्लास टुमारो, ठीक है. सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू रीड अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है. सो सॉरी फॉर दिस.